زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے، سنا ہے اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہاں تک کہ یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی ہیں۔ اور یہ خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے، خدا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں 3 جگہوں پر ذکر آیا ہے کہ یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ایک دفعہ یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، پھر نائن کی ایک بیوہ تھی، اس کے بیٹے کو زندہ کیا، اور پھر یسوع نے لازر کو زندہ کیا۔ یسوع نے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا، اور میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع مسیح زندہ کیسے کرتا ہے، اور یسوع مسیح میں ایسا کیا ہے کہ مردے اس کی آواز سنتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی آواز میں وہ کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے کہ مردے اس کی آواز سنتے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے، آپ نے بارہا اس حوالے کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے، اور اس واقعے کو شاید بہت سارے لوگ زبانی بھی جانتے ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 38 سے 44ویں آیت آج آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اور اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کو آپ کے درمیان شیئر کیا جائے اور اس حوالے کو پڑھا جائے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ایک شخص سے بہت پیار کرتا تھا جس کا نام لازر تھا، اور یسوع مسیح، اس کی جو 2 بہنیں تھی مریم اور مارتھا، وہ یسوع مسیح سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اور ایک اور بات کہ یسوع مسیح صرف اپنی، جب یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا اور صلیب پر قربان ہونے کے دوران صرف 2 بار رویا۔ ایک بار جب لازر مر گیا، دوسری بار جب وہ شہانہ اس کا داخلہ ہوتا ہے یروشلم میں، تو وہ یروشلم کی طرف دیکھ کر روتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یسوع رویا ہے تو وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ آج آپ کے درمیان ایک بڑی خوشخبری ہے۔ ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ذرا تھوڑا پیچھے جائیں تو 11ویں باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیا کا لازر نام ایک آدمی تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں
تو 38ویں آیت میں ہم آتے ہیں تو یہاں پر لازر مر جاتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا. وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا. یسوع نے کہا, پتھر کو ہٹاؤ. اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا, اے خداوند, اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے, کیونکہ اس سے 4 دن ہو گئے. یسوع نے اسے کہا, کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا, اے باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی, اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے, مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ. اور جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا, اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے ان سے کہا, اس سے کھول کر جانے دو. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. خداوند کا شکر. یہاں پر بہنوں بھائیوں ہمیں ایک مردے کا واقعہ ملتا ہے جس کا نام لازر ہے, اور یسوع مسیح اس سے بڑی محبت کرتا ہے. اور محبت کا ثبوت کیا ہے؟ یسوع رو رہا ہے. یسوع اس کے لیے رو رہا ہے کہ وہ مر گیا ہے. یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یسوع کہیں باہر گیا ہوا ہے. اس کو میسج ملتا ہے کہ لازر بیمار ہے, لیکن وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر 2 دن اور ٹھہرا رہا. کیوں وہ 2 دن ٹھہرا رہا؟ وہ جلدی سے آ بھی سکتا تھا, اور وہ کہتا کہ میرا عزیز بیمار ہے, میں جلدی سے جاؤں اور اس کے لیے دعا کروں تاکہ وہ شفا پائے. یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. پھر سب سے بڑی بات, یہودیوں کی روایت ہے, وہ اس بات کو قبول کرتے اور مانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب وہ مر جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح جو ہے وہ اس باڈی کے قریب ہی رہتی ہے. لیکن ہم خدا کے کلام میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ 4 دن. یہ اس لیے ہوا کہ آپ کو اور مجھے بتایا جائے کہ یسوع مسیح ہر ایک بات پر قادر ہے. وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اور یسوع مسیح جب قبر پر جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بہت رنجیدہ ہوا, یعنی اس کا دل بہت خفا تھا, اس لیے کہ اس کا عزیز مر گیا تھا. لیکن یہ اس لیے اس نے ہونے دیا تاکہ یہودی جانے کہ اس کو باپ کی طرف سے بھیجا گیا, اور وہ ایمان لائے کہ وہی اس کا بیٹا. اور ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا. وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا. یسوع نے کہا, پتھر کو ہٹاؤ. انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا, اور اس کی بہن نے کہا خداوند سے, اس نے کہا کہ اس کو مرے ہوئے تو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 4 دن ہو گئے, اور اس سے کیا آ رہی ہے؟ بدبو آ رہی ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے
जब कोई भी मर जाता है तो बदबू आती है। जब मरता है तो थोड़े टाइम बाद ही हमारी बॉडी जो है डिस्पोज होना शुरू हो जाती है, उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जब कोई मरता है तो खासकर गर्मियों में बर्फ के ब्लॉक्स रखे जाते हैं और पंखा लगाया जाता है ताकि उसकी बॉडी क्या रहे, ठंडी रहे और उसमें से क्या ना आए, बदबू ना आए। अब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और उसमें से बदबू आ रही है, लेकिन यीशु कहता है कि पत्थर को हटाओ। उन्होंने पत्थर को हटा दिया। बहुत सारे लोगों ने बातें भी की होंगी, बहुत सारे यहूदियों में, कि ये क्या कह रहा, ये क्या बक रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की होंगी कि ऐसे ही अपने आप से लगा हुआ है, 4 दिन का मुर्दा है, उसमें से बदबू आ रही है, वो कैसे जिंदा हो सकता है। हम तो मानते हैं कि 3 दिन तक रूह जो है फिरती है और फिर उसके बाद वो चली जाती है, तो इसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, कैसे ये इसको जिंदा कर पाएगा। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, और फिर यीशु ने एक ही आवाज लगाई। यीशु ने कहा ऐ लाजर बाहर निकल आ। क्या हुआ, यीशु की आवाज की फ्रीक्वेंसी, सिर्फ उसका बोलना और यीशु मसीह की आवाज की कुव्वत जब लाजर के कानों में पड़ती है तो लाजर कफन बंधे हुए बाहर निकल आता है। लाजर निकल आता है कब्र से। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसको आवाज दी है। यीशु की आवाज में कुदरत है, यीशु के बोलने में कुदरत है। वो बोलता है और हो जाता है, वो बोलता है और सब कुछ जिंदा हो जाता है। हालेलुया। हर एक चीज यीशु जिंदा करता है। यीशु टांगे नहीं बना देता है, यीशु आंखें नहीं बना देता है, बदरूहें भागती हैं यीशु की आवाज से, क्योंकि वो ही क्रिएटर है। उसने मुझे और आपको तख्लीक किया। हम आज एक बात पर गौर करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं चाहता हूं कि शॉर्ट टाइम में थोड़ी बातें हो जो हमें समझ आए। आज हम इस पैसिव को, इस वाक्य को सामने रखते हुए अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। आज मेरा इस टॉपिक का मकसद है, ये टॉपिक मेरा अपने आप से नहीं है, ये खुदा के रूह ने मुझे दिया। मुझे नहीं पता, मैं दुआ कर रहा था तो मुझे मिल गया। हालांकि मैंने सोचा कुछ और था अपनी अकल से कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे कहा कि नहीं, ये बोलना। आज बहनों और भाइयों, हम इस बात पर गौर करेंगे कि कहीं मैं भी तो मुर्दा नहीं हूं, कहीं मैं भी तो कब्र में नहीं पड़ा हुआ। लाजर तो एक कब्र में पड़ा हुआ था, हमारी तो शायद कब्रें भी बहुत सारी हैं। वो आपने देखा होगा, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, फिर बॉक्स के अंदर बॉक्स। हम वो मुर्दे हैं जिसकी कब्रें बहुत सारी हैं। लोग बीमारियों की वजह से मरते हैं, किसी को शुगर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, जिस्मानी बीमारियां जो हमारे जिस्म को खत्म कर रही हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, रूहानी बीमारियां भी हैं। रूहानी बीमारियों में हम गिरफ्तार होकर हम मर जाते हैं, हम मुर्दा हो जाते हैं, हम कब्र में चले जाते हैं। और कब्रें भी बहुत सारी हैं। कैसे?
लाजर एक कब्र में था और यीशु ने उसको आवाज दी तो लाजर क्या हो गया, बाहर निकल आया। लेकिन बहनों और भाइयों, आपके लिए एक खुशखबरी यह है कि आप चाहे जितनी भी कब्रों में पड़े हो, यीशु मसीह की एक आवाज से आप सब कब्रों से निकल आएंगे और आप जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, आप जिंदा हो जाएंगे। कौन सी कब्रों में हम पड़े हुए? हम झूठ की कब्र में पड़े हैं, हम लालच की कब्र में पड़े हैं। मुर्दा, लालच ने हमें मुर्दा कर दिया है, झूठ ने हमें मुर्दा कर दिया। हमारी जुबान से झूठ जाता ही नहीं है, चस्का हमें लग गया हुआ है झूठ का। ऐ नहीं असी जड़ा ना शौक नाल ही झूठ बोली जाने हैं। बच्चों को भी हम सिखा रहे हैं, कोई दरवाजे पर आ जाए तो आप बच्चे को कहते हैं कि उसको कहो कि नहीं मेरा बाबा घर में नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है। शौक नाल हम झूठ की कब्र में पड़े हैं, हम रियाकारी की कब्र में गिरफ्तार हैं। जो हम हैं वो हम नहीं है, और जो नहीं है वो हम हैं। जो हम बाहर से हैं वो हम अंदर से नहीं है, जो अंदर से हम हैं वो हम बाहर से नहीं है। हम बुग़्ज़ की कब्र में पड़े हुए, हमारे दिल में बुग़्ज़ है। ऐ क्यों अच्छा हो गया, इसके बच्चे ने तरक्की क्यों कर ली है, ये क्यों जल्दी से इंग्लैंड चला गया, कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया। ऊपर ऊपर से तो हम उसको कहते हैं बड़ी खुशी हुई है, आप बड़ा अच्छा लगा है, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन अंदर से हमारे दिल काले। हम हसद में गिरफ्तार हैं, हम हसद कर रहे हैं कि ये क्यों चला गया है, मैं क्यों नहीं गया। इसका मतलब है कि हम हसद की कब्र में पड़े हुए हैं, हम गॉसिपिंग की कब्र में पड़े हैं। ऐसे ही एक दूसरे की गॉसिपिंग हम करते हैं, खुदा के कलाम को हम शेयर नहीं करते, हम यीशु की बातें नहीं करते, बल्कि वो वक्त हम गॉसिपिंग करते हैं। इसका कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुर्दे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा मुर्दों का खुदा नहीं है, हमारा खुदा किसका खुदा है? जिंदों का खुदा है। हालेलुया, हमारा खुदा जिंदों का खुदा है, और वो हमें भी जिंदा करना चाहता है। उसकी कुव्वत, उसकी आवाज हमें आज जिंदा करना चाहती है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने कानों को खोलना है। और कैसे खोलना है? ऐसे कि ऐस कान से सुन के दूसरे कान से हम निकाल दें, बल्कि एक कान को बंद रखना है, ताकि जो इस कान से अंदर जाए वो अंदर ही अंदर रहे, बाहर ना निकलने पाए। और खुदा का कलाम सुनकर हम उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई भी करें। पास्टर साहब मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे लिए इंतहाई मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिल में, मेरी आंखों में उनकी कितनी बस मैं आपको अल्फाज नहीं है कि मेरी नजर में उनका लेवल क्या है। और जब उन्होंने इतनी अच्छी बातें कर दी तो फिर मेरी बात भी, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है कि शागिर्द कभी भी उस्ताद से बड़ा नहीं होता, उस्ताद बड़ा ही रहता है। और मेरे नजदीक ये है कि जब उस्ताद चल रहा हो ना, तो फिर शागिर्द को उसके बराबर नहीं चलना चाहिए, शागिर्द को एक कदम पीछे ही रहना चाहिए, उस्ताद को आगे होना चाहिए, क्योंकि उस्ताद ही होता है। और जब उन्होंने इतनी अच्छी, मैं बड़े शौक से यहां पर बैठकर उनकी बातें सुनता हूं, एक एक बात मेरे लिए बरकत का बायस होती है। एक एक बात उनकी, चाहे वो आम बात कलाम से इलावा भी कर रहे हो, तो मैं उनको पास्टर तो वो है ही है, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, लेकिन मैं उनको कहता हूं वो प्रोफेसर भी है। मैं समझता था कि मेरी सच्ची, चले ये बात आ गई है तो पास्टर जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता था कि मेरी राइटिंग बड़ी क्लियर है, नीट है,
इंग्लिश की भी और उर्दू की भी, लेकिन जब मैंने उनकी राइटिंग तो मैंने अपने दिल में कहा, मैंने कहा वाह खुदावन, कैसी बरकत तूने अपने बंदा को दी है, ऐसी स्लीस राइटिंग और नीट राइटिंग कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये खुदा की ब्लेसिंग है। अरे तालियां बजाइए खुदा के खादम के लिए। और ये बात सुने, मैं ऐसी जगह से आया हूं, आप लोग भी आए हैं, मैंने बड़े खादमों के साथ उनकी खिदमत भी की और वक्त भी गुजारा है, लेकिन ऐसा खादम खुदा ने आपको दिया है कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। रूहानी खादम, पढ़ा लिखा खादम और दिल में राम से भरा हुआ खादम। बहुत सारे लोग जानते हैं दिल में रहम, हेल्पफुल, लोगों की मदद के लिए। तो जब मैं उनकी ताबेदारी में हूं तो खुदा का फजल है कि मैं जितना टाइम भी वो यहां पर है, पाकिस्तान में रहे, मैंने उनसे वहां पर भी थोड़ा सा सीखा है, और यहां पर आकर तो मैंने 1-1.5 महीने में इतना कुछ सीख लिया कि शायद वो सालों में मैं ना सीख सकता। हालेलुया, खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े खुशकिस्मत है कि आपको ऐसे खादम, खुदा ने ऐसा खादम दिया है। ये नसीबों वालों को मिलता है, और मैं समझता हूं मैं नसीबों वाला हूं। जब हम अजीजों खुशखबरी पर ईमान रखते हैं और हम इस बात को जानते हैं, ये ईमान सबसे बड़ी बात कि वही जिंदा कर सकता है। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ उसकी आवाज को सुनना है और ईमान रखना। अब ईमान कैसे रखें? ईमान, जब मुश्किल आती है तो हमारा ईमान डोल जाता है, जब कोई परेशानी आती है तो हमारा ईमान डोल जाता है, जब मेरे बच्चे भूखे होते हैं तो मेरा ईमान डगमगाने लगता है, जब मेरे बच्चे घर में फाकों में होते हैं तो मेरा ईमान डगमगा जाता है। मैं सोचता हूं कि मैं इनके लिए रोटी कहां से लेकर आऊं, चाहे उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे चोरी करना पड़े, वो मेरा ईमान वहां का वहीं धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बेइत्तेकादी की कब्र में हूं, और मुझे उस कब्र से कौन बाहर निकालेगा? कौन बाहर निकालेगा? बोलिए, कौन निकालेगा? यीशु मसीह उस कब्र से बाहर निकालेगा। यहां पर आकर मेरे ईमान को बड़ी मजबूती मिली है, और मैंने सीखा है, मैंने देखा है कि वाकई ईमान क्या होता है। और ये किसके वसीले से हुआ? खुदा के खादम के वसीला से। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि आपने इतना टाइम गुजार लिया, और मैं 1 महीने में इतनी ब्लेसिंग मैंने उनके वसीला से हासिल की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहां पर आज मैं आपको एक खुशी की खबर देना चाहता हूं। आज यहां पर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं अजीजों, कि आज अगर हम मुर्दे हैं, अगर हम झूठ की कब्र में पड़े हैं, अगर हम हसद की कब्र में पड़े हैं, अगर हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, अगर हम किसी को अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते, तो हम सबके लिए खुशी की खबर है। और खुशी की खबर क्या है? कि यीशु मसीह हमें जिंदा कर सकता है। और यीशु मसीह, और कलाम में लिखा है कि वो किनका खुदा है? अगर हम जिंदा होंगे ना, फिर वो हमारा खुदा है। खुदा के कलाम के मुताबिक वो मुर्दों का खुदा नहीं है, वो मरे हुओं का खुदा नहीं है, वो झूठों का खुदा नहीं है, वो लालचियों का खुदा नहीं है, वो बुग़्ज़ करने वालों का खुदा नहीं है, वो रियाकारों का खुदा नहीं है, बल्कि वो जिंदों का खुदा है। इसलिए हमें जिंदा होना है। और हमें जिंदा कौन करेगा? कौन करेगा? ये है यीशु, ये है यीशु, ये है खुशखबरी जो हमें जिंदा करेगी। हम ना बोले झूठ, हम मर नहीं जाएंगे, और अगर मर भी जाएंगे ना तो दुनियावी तौर पर शायद हमें तकलीफात का सामना करना पड़े, लेकिन वहां पर हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी।
हमें हमेशा की जिंदगी के पीछे जाना है। आखिर में आप लोगों के साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा, मैं वहां पर भी करता था कि यीशु मसीह ने अपनी जान को किस लिए कुर्बान किया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाए। और जब आखिरी वक्त होगा ना, जब हमारी रूहों का हिसाब होगा, तो फिर मेरी अपनी थॉट यह है कि एक साइड पर यीशु मसीह होगा, एक साइड पर अबलीस होगा। जो यीशु के लोग हैं वो जब यीशु की तरफ जाएंगे तो अबलीस शर्मिंदा होगा। जिन्होंने यीशु मसीह के कलाम पर अमल किया होगा तो अबलीस उनको देखकर शर्मिंदा होगा। लेकिन जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने सारी उम्र जो कब्रों में पड़े रहे, इस दुनिया में भी और फिर वहां पर भी, तो क्या होगा जब वो अबलीस की तरफ जाएंगे तो हमारा यीशु क्या होगा, उसको दुख होगा। क्या आप ये चाहेंगे कि यीशु मसीह वहां पर दुख में हो, वहां पर उसकी कुर्बानी जो उसने दी है, उसकी कुर्बानी को हम रायगा करें? याद रखें, उसने इसीलिए अपनी जान को कुर्बान किया ताकि मैं और आप निजात पाएं, ताकि हमारी नस्लें निजात पाएं, ताकि हमारी जनरेशंस खुदा के हुजूर में जाएं। इस कुर्बानी को कभी भी मामूली मत समझिएगा। बस सिर्फ मुंह से ये कह रहे हो यीशु मसीह ने दी क्रॉस पर हमारे लिए जान दिए, नहीं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर भी उसने दुख सहे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खामोश रहा। वो इसलिए खामोश रहा कि हमें हमारी कब्रों से उठाए, हमारे मुर्दा दिलों को वो जिंदा करे। आज हमें अपनी कब्रों से बाहर निकलने की जरूरत है अजीजों। आज हमें मुर्दा दिली से निकलने की जरूरत है, हमें जिंदा होने की जरूरत है। और वो जिंदा सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही हमें कर सकता है। और खुदा का कलाम कौन है? यीशु मसीह है। वही सिर्फ हमें जिंदा कर सकता है। आए इस बात का आज इकरार करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ही ईमान रखूंगा, और वही हमें सिर्फ बचा सकता है। वही हमें मुर्दगी से जिंदगी की तरफ लेकर आ सकता है। जिंदगी की तरफ नहीं मैं कहूंगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी की तरफ हमें लेकर आ सकता है। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, ताकि आप हर रोज नए से नए होते जाएं, हर रोज आप उसकी कुर्बत में बढ़ते जाएं, ताकि वो तमाम मुर्दा काम जो हमारी जिंदगी में हैं वो हमेशा की जिंदगी में बदलते जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकतें देता रहे। आमीन आमीन।